Hi Neha, could you please help me out with one thing? Could you please tell me how much number of hours I should put in while studying? This is CA final and 2 months are left. So please tell me how much number of hours I need to put in. And all I think while hearing these questions is, my dear friend, number of hours should never be the criteria to determine and measure your performance and your preparation. That should never be the criteria. Let me tell you why. Back then, when I appeared for my CA final first time, I couldn't make it in that attempt. My marks were pretty manageable, but I end up not qualifying. So what I did after the result, I contacted few of my friends who qualified, and I asked them their strategies, and like I was trying to figure out where I went wrong. So I ignored all the factors and my focus was on number of hours. So one of the friends said, I used to study for like 18 hours. And I said, okay, I'll also try 18 hours. So from that day, what I did, I started tracking my number of hours. So I maintained a diary especially for tracking my number of hours. So whenever I'm on my study table, I used to write that, okay, it's 12, I'm on my study table. And if I'm sitting here for till 1 or till 2, that's 2 hours. 12 to 2, I'm on study table, it means 2 hours of studies. Do you think this should be the criteria? Because I'm ignoring the fact that I'm studying, I'm sitting here, but I'm not even studying effectively. My output is only of 30 minutes, 40 minutes, or 1 hour, and I'm sitting here for 2 hours. So my study time was 1 hour, not 2 hours. So number of hours should never be the factor. तो यहाँ तक तो चलो ठीक था, मैंने कर लिया ऐसा. आई डिड दिस फॉर 5 to 6 days. आई कॉन्टीन्यूसली डिड दिस एंड देन आई रियलाइज कि नहीं हो रहा. All I was doing is just tracking my number of hours. My whole focus was shifted from being efficient to tracking my number of hours, and I was ईगो पे लगती थी अगर मेरे 14 या 15 घंटे से ऊपर नहीं जा रहे तो. बट आफ्टर 5-6 days I realized my hours, the hours I'm devoting are 15-16 hours, but the output is just 8 to 10 hours. Maximum it was 8 to 9 hours something. So where I'm lacking? Then I realized, it's better to study audit for 30 minutes rather than sitting here on table and trying to study it in stretch for 2 hours. Because your mind is band ho gaya mind. Your mind is not even there. Our mind has a capacity that only till this time it will be on. We are active, and after a certain number of time and after a certain point of time, the mind goes, गया वो. आप यहाँ बैठे हो, आपकी बुक आपके सामने है, पर माइंड आपका बंद हो चुका है. सो डू यू थिंक इज इट वर्थ टू डू दिस? नो, इट्स नॉट. सो देन आई वो तो छोड़ दिया फिर मैंने कि नहीं हो रहा है, आवर्स वाला बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है. देन आई डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डिसाइड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आवर आई वॉन्ट टू पुट इन टू दिस, एंड आई नीड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी. ये एक स्ट्रेच में बैठ के तो नहीं हो रहा है मुझसे. देन आई शिफ्टेड टू कि मैं ऑडिट का अपना मैं 25 minutes का टाइमर सेट करूँगी. उस टाइम में मैं कितना ऑडिट पढ़ पा रही हूँ वो पढ़ूंगी. एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग द ऑडिट एंड लॉ एंड थियरी सब्जेक्ट इन दिस वे दैट एक. सो आई मेड 4 chunks of 25 minutes इन अ डिफरेंट हॉरिजन ऑफ द डे. तो ऐसे बाइफर्केशन के साथ आई वॉज मोर एक्टिव, आई वॉज मोर एफिशिएंट. कि इससे एंड दिस वॉज बेटर देन कि मैं एक स्ट्रेच में बैठ के 2 घंटे 3 घंटे ऑडिट पढ़ रही हूँ. मेरा माइंड बंद हो चुका है पर मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे अपने ऑडिट के 3 घंटे पूरे करने हैं, तो मैं उसे स्ट्रेच में ऐसे करूँगी. तो ये जो नंबर ऑफ़ आवर्स वाली थिंग है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. कुछ लोगों का फोकस बहुत अच्छा है, दे कैन सिट इन स्ट्रेच, उनकी सिटिंग बहुत अच्छी है, वो एक स्ट्रेच में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हैं. पर मेरी नहीं थी. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करनी थी, मुझे इस चीज़ के अकॉर्डिंग अपना सारा स्टडी प्लान करना था कि मेरी सिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरा माइंड बंद हो जाएगा अगर मैं इतने स्ट्रेच में बैठी रहूँगी तो. सो आई प्लान माई स्टडी अकॉर्डिंगली. तो नंबर ऑफ़ आवर्स कभी मैटर नहीं करते कि आपने कितने घंटे. आप जब 3 घंटे का पेपर लिखोगे ना, वहाँ एंट्री लेवल पे कोई नहीं आपसे पूछेगा कि 18 घंटे पढ़ के आए हो ना तो ही पेपर लिखने देंगे. कोई पूछेगा क्या? ऐसे नहीं पूछेगा कोई. आपने 10 घंटे भी पढ़ा है पर आप इतने उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ और इतने एक्टिव ब्रेन के साथ आप उसे पढ़ कर आए हो, तो वो क्या मैटर करेगा कि आपने 10 घंटे पढ़ा है या 18 घंटे पढ़ा है. ऑल यू शुड फोकस ऑन कि मैं जिस टाइम स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो उस टाइम मेरा दिमाग एक्टिव है और उस टाइम मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ. फिर मैं ये नहीं सोच रही कि मैं वो मूवी देख लेती, मैं फ़ोन पे वो चेक कर लेती. ये होती है एक्टिवली स्टडी करना और एफिशिएंसी के साथ पढ़ना.
मैं पढ़ तो रही हूँ 18 घंटे, आउटपुट मेरा 7-8 घंटे का भी नहीं आ रहा, तो व्हाट्स द पॉइंट। तो इसलिए नंबर ऑफ़ आवर्स के पीछे ना भागना बंद कर दो, और खबरदार मुझसे किसी ने पूछा कितने घंटे पढ़ना है। कुछ नहीं होता है बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ने से। मैं सच बता रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा कभी 18 घंटे, 14 भी नहीं, 12 पढ़ लिया होगा जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं, तो 12 घंटे पढ़ लिया होगा। मैं ये नहीं कह रही कि लोग पढ़ते नहीं हैं या पढ़ नहीं सकते, पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं, पर नंबर ऑफ़ आवर्स से ऊपर एक चीज़ है कि आप कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ और कितने एक्टिव ब्रेन के साथ पढ़ रहे हो। तो नंबर ऑफ़ आवर्स का मुझसे मत पूछना, आप देखो, ठीक है। आराम से पढ़ाई करो, जितनी देर हो रही है शांति से पढ़ो, शांत दिमाग से पढ़ो, जितनी देर पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं। स्ट्रेस्ड आउट मत हो कि इतने घंटे पढ़ लेता, उतने घंटे पढ़ लेता, मेरा दोस्त तो 18 घंटे पढ़ता है। पढ़ने दो, दोस्त पढ़ रहा है, जिसने पहले पढ़ा है, आप अपना देखो। पढ़ सकते हो 18 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो कोई ऐसा कुछ सेट नहीं है कि जिसने 18 घंटे पढ़ा है वही पेपर में अपीयर करेगा और वही पेपर में पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ेक्टिव पढ़ो और एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करो, और सोच को ज़रा पॉजिटिव रखें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो में मैंने ट्राई करा कि मेरा जो अपना मेन जो बात है उसको इंग्लिश में बोल दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर नीचे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि क्या बोला है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, और बाद में मैंने हिंदी में बोला, क्योंकि मुझे फील नहीं आता जब तक मैं हिंदी में बात नहीं करती, ऐसे मुझे कनेक्शन सा फील नहीं होता। सो आई होप कि जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उनको मेरी बात थोड़ी समझ आ गई होगी, एंड बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं और पूरी वीडियो इंग्लिश में कर दूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।